मसीह में उसके बच्चे हो, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। You are in the Lord, you are a child of God, and you fell in something, you fell in sin. I say, get up and walk again. You fell again, get up and walk again, because the time is coming when you will never fall in that sin ever again. Amen. आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने क्या होगा, यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो, You know why the Bible says even if the righteous fall 7 times? अगर 8 बार गिर गए तो? What if the righteous fell 8th time? एक भाई ने मुझे एक बार कहा, देखो भाई बाइबल में लिखा है 7 बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार। So one brother told me, see, Bible says 7 times. If someone fell 8th time in the same day, then God is not responsible. ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते हैं। This is what happens when we read the Bible with our senses. 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है। 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? How many days did God take to 7 make everything? कंप्लीटनेस का नंबर है, 7 is the day of number of completeness. मैच्योरिटी का नंबर है, It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है। The number of यानी somebody बाइबल becoming कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल, गिरा उठ चल, तुझे जब तब तक, वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ। So the Bible is saying even until you become matured, if you fell, the Holy Spirit will say get up and walk. If you fell again, the Holy Spirit will say get up and walk. Until you are matured, I will not leave you nor forsake you. Amen. इसीलिए तो सहायक दिया। This is why he gave you a helper. वो जानता है हम बिना सहायक के नहीं चल सकते। He knows we मसीह चाल को। cannot walk this Christian walk without a helper. Amen. So don't allow guilt. इसलिए उस दोष को जगह मत देना। वो लहू बह रहा है, That blood is flowing for you. जब गिरो Whenever you fall, उठो, get up, लहू के अंदर जाओ, go into the blood. साफ हो, Be cleansed, चलो, walk again. लड़खड़ाओ, You stumble, उठ जाओ, get up, लहू के अंदर आओ, go into the blood. चलो। Walk again. परमेश्वर गिव अप नहीं करता अपने लोगों में। जनरली शैतान गिल्ट डाल डाल के मसीह लोग गिव अप कर देते हैं परमेश्वर। God does not give up on his people. Usually devil keeps on putting guilt in people's heart and people give up. कहते हैं मैं लायक नहीं हूं। They say I'm not worthy anymore. Amen. बाइबल कहती है we don't have an high priest who is not touched with the feelings of infirmity. वो जानता है, उसको हर एक प्रकार की टेम्पटेशन से लेके आया, उसको उस यीशु मसीह को पता है टेम्प्ट होना कैसा है। हमारा महायाजक Jesus knows what it's like to be tempted with every temptation. The devil brought every temptation to him. Amen. वो बच्चा अब 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, बैठ रहा है। That child is now 9 months, 10 months, he's sitting. एक दिन खड़ा हुआ, One day he stood up 2-3 सेकंड के लिए। for a couple of seconds. मेरा भी फ्रेश है, मैं मेरी क्योंकि जूडा घर पे अभी चलना सीख रहा है। Mine is fresh because Judah is learning to walk. 2-3 सेकंड के लिए For 2-3 seconds. माँ बाप खुश हो गए, Mummy हमारा Papa बच्चा is खड़ा हो गया, excited. Oh, our child is standing up. फिर गिर गया, And fell again. कोई बात नहीं, Doesn't matter. और मसाज करते। They massage his legs. डिसअपॉइंट नहीं होते They don't get disappointed क्योंकि वो जानते हैं because they know. पहले बैठा, First he sat. अब 2-3 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, For a couple of seconds he अब stood. जल्दी जल्दी कदम रखेगा, Very soon he'll start और to take फिर steps. भागेगा। And then he will run. परमेश्वर पिता जानता है God knows. मेरे बच्चे जो आत्मा में पैदा हुए The Father knows my पहले खुद children. से बैठना सीख रहे They हैं, are learning to sit. फिर कदम रखेंगे हल्के हल्के, Then they will take और steps. फिर मसीह यीशु की तरह चलना सीख And जाएंगे। they will learn to walk like Jesus. आपके डीएनए में हो। It's in your DNA. शैतान आपको क्या बताता है? शैतान कहता है नहीं तू अच्छा नहीं है, The devil tells you you're not good enough. तू लायक नहीं है। You're not worthy.
शैतान, आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ वो क्या बोलता है आपको? यू हैव डिसअपॉइंटेड गॉड। You know the biggest lie the devil tells you is आपने निराश किया परमेश्वर को. परमेश्वर तो लायक नहीं है। Now you're not worthy anymore. आमेन। सो पहली चीज जो करनी है वो है डिजायर करना है परमेश्वर के वचन को। The first thing you need to do is to desire the word of God. सो अगर आप नए हो, If you are new, नया जन्म आपने पाया, आप इस कलीसिया में आए हो, जो लोग हमें ऑनलाइन दिख रहे हैं, अगर आप नए बच्चे, मैं नहीं कह रहा 10 चैप्टर पढ़ो पहले। if you are born again and you've come to the Lord, I'm not saying read 10 chapters every day. एक बच्चा जब पैदा होता है, आप जानते हैं उसका पेट एक पीच जितना होता है। When a child is born, their stomach is like the size of a peach. पीच को क्या बोलते हैं? हाँ, आड़ू। आड़ू के जितना होता है एक छोटे बच्चे का पेट। The size इतना of a सा। peach. तो आपने नया जन्म पाया, So you've been born again. थोड़ा सा पढ़ो बाइबल, Read the Bible a little bit. फिर जब टाइम मिले फिर थोड़ा पढ़ो, When you get time again, फिर थोड़ा read a और little. पढ़ो, Then read हल्की again. हल्की एपिटाइट बढ़ने लग जाएगी। The appetite will grow slowly and gradually. जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ। When a child is born in a house, he's given unconditional love without any expectations. आमेन। अनकंडीशनल लव। सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे। If you've come to the Lord, this is where you want your foundation to be made, that God is your good father and he loves you unconditionally. आमेन। बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं। Whenever the child sleeps, whenever the child wakes up, no problem. मगर अब बच्चा 3 साल का हो गया, But now the child is 3 years अब old. ट्रेनिंग का टाइम स्कूल हो गया, अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा। it's time for training, you have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा। have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God do? अब आप बढ़ने लग गए, Now you're growing, अब आपको ट्रेनिंग में डालता है। now he puts you in training. आमेन। Amen? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now he हल्की। gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं, Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How many of you are learning something? आमेन। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए। Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven. जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता। Which is the basic foundational teaching, they don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से जो परमेश्वर ने माफ कर दिया।